ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ تم جیسی 2 ٹکے کی لڑکی کو میں اپنی بیوی تسلیم نہیں کرتا، نکلو میرے کمرے سے۔ ہانیہ کو دھکا دے کر کمرے سے نکال کر دلاور خود سگریٹ پینے لگا۔ اس بات سے انجان کے حویلی کے باقی دروازے لاک تھے۔ 16 سالہ ہانیہ ٹھنڈ سے صوفے پر بیٹھی سکڑنے لگی، پر جوں جوں سردی بڑھنے لگی ہانیہ کے حواس کھونے لگے اور جسم ٹھنڈا پڑ گیا۔ جب دلاور ہیٹر زدہ کمرے سے باہر نکلا تو ہانیہ کو ٹھنڈ میں بے ہوش دیکھ کر اپنے کمرے میں لے گیا۔ جب کچھ دیر تک کوئی ڈاکٹر نہ ملا تو خود ہانیہ کے قریب ہوتے حویلی کا تالا کھولے وہ اندر داخل ہوا تھا۔ ہر طرف اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ سوئچ بورڈ پر ہاتھ رکھ کر اس نے لائٹس جلائیں تو پوری حویلی روشن ہو گئی۔ وہ آج یہاں اکیلا نہیں آیا تھا، بلکہ اس کے ساتھ زوہا تھی، اس کی یونیورسٹی فیلو، جس سے وہ اب تک تعلق میں تھا۔ آج وہ ایک بار پھر زویا کے ساتھ یہاں وقت گزارنے آیا تھا۔ یہ کہنا کچھ غلط نہیں تھا کہ دلاور ملک اس حویلی کو صرف اپنے خفیہ کام کرنے کے لیے بھی استعمال کیا کرتا تھا۔ یہاں اسے کسی قسم کی روک ٹوک کا سامنا نہیں کرنا پڑتا تھا۔ وہ گھر والوں سے چھپ کر اپنی مرضی سے جو چاہے کر سکتا تھا، اس لیے وہ ہمیشہ ایسی سرگرمیوں کے لیے اس حویلی کا رخ کرتا تھا۔ یہ حویلی گاؤں میں تھی۔ پہلے وہ لوگ یہیں رہا کرتے تھے، مگر پھر زیادہ ترقی اور دولت کی فراوانی کے بعد اس کے گھر والوں نے لاہور شہر میں گھر لے لیا تھا، اور اب کئی سالوں سے وہ لوگ وہیں مقیم تھے۔ اس کے گھر والے حویلی کا رخ بہت کم کرتے تھے، اسی لیے دلاور نے اس بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے حویلی کو اپنی بے باک سرگرمیوں کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا تھا۔ آج وہ پھر زوہا کے ساتھ آیا تھا، جس نے اس وقت سرخ رنگ کی ساڑی پہنی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے پر میک اپ لگا ہوا تھا اور اس کے ہونٹوں پر لگی سرخ لپسٹک اسے مزید خوبصورت اور دلکش بنا رہی تھی۔ جو ہی دلاور اس لڑکی کو لے کر حویلی کے اندر گیا تو چوکیدار نے فوراً جہانگیر صاحب کو فون ملایا تھا۔ صاحب، دلاور سر پھر سے ایک لڑکی کے ساتھ حویلی آئے ہیں۔ اس نے آہستگی سے انہیں خبر دی تو جہانگیر صاحب کا خون کھول اٹھا۔ وہ تیزی سے گاڑی کی چابی اٹھاتے کمرے سے باہر آئے تھے۔ کیا ہوا ڈیڈ، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ملیحہ نے اپنے باپ کو عجلت میں کمرے سے نکلتے دیکھ کر پوچھا۔ اس بے غیرت انسان کو لینے جا رہا ہوں جس میں ایک ذرہ برابر بھی شرم باقی نہیں رہی۔ وہ غصے میں بولتے گھر سے چلے گئے۔ ملیحہ کے چہرے پر پریشانی کے واضح آثار آنے لگے تھے۔ اسے معلوم تھا اس کے بھائی نے یقیناً پھر سے کوئی نیا چاند چڑھا دیا ہوگا، کیونکہ ڈیڈ اکثر اسی کی حرکات کی وجہ سے غصے میں رہتے تھے۔ نہ صرف وہ، بلکہ اب تو ملیحہ اور اس کی ماں کو بھی دلاور کی فکر ہونے لگی تھی۔ فاسٹ ڈرائیونگ کرتے وہ 1 گھنٹے کے اندر ہی حویلی پہنچ گئے۔ بڑے اشتعال میں انہوں نے حویلی کے اندر قدم رکھا تھا۔ جب تک وہ دلاور تک پہنچتے تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ دونوں اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکے تھے۔ دلاور بغیر ٹی شرٹ کے موجود تھا۔ جہانگیر صاحب کو آتا دیکھ کر اس کے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی، جبکہ وہ لڑکی عجلت میں اپنی ساڑی درست کرنے لگی۔ ڈیڈ، آپ یہاں؟ وہ گھبرا کر بول رہا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا اب اپنے باپ کے سامنے کیا عذر پیش کرے۔ جس حالت میں انہوں نے اسے پکڑا تھا، اسے اپنے آپ کو بچانے کا کوئی بہانہ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس سے قبل کہ وہ اپنا جملہ مکمل کرتا، جہانگیر صاحب غصے میں اس کے نزدیک آئے اور اس کے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ مارا۔ انہوں نے صرف تھپڑ پر کنات نہیں کی، بلکہ اسے بری طرح مارنا شروع کر دیا۔ زوہا کے سامنے وہ شرمندہ ہو کر رہ گیا تھا۔ آج اس کے ڈیڈ نے زندگی میں پہلی مرتبہ اس پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ دلاور کی کلاس لینے کے بعد وہ زوہا کی طرف آئے تھے۔ بے شرم لڑکی، حیا نام کی کوئی چیز ہے تم میں؟ پیسوں کے لیے تم اس حد تک گر سکتی ہو؟ کتنے پیسے لیتی ہو تم مردوں سے ان کے ساتھ تعلقات بنانے میں؟ ہاں، پیسوں کے لیے تم دلاور کے ساتھ یہاں آئی ہو نا؟ وہ غصے میں اسے پوچھ رہے تھے۔ وہ لڑکی تھی، اسی لیے انہوں نے خود کو باز رکھا تھا کہ وہ نہ اس پر ہاتھ اٹھائیں نہ اسے سخت بات کہہ دیں۔ اس لڑکی کی آنکھوں میں جہانگیر صاحب کو کوئی شرم و حیا نظر نہیں آئی۔ ڈیڈ پلیز ایسا نہ کہیں، وہ ایسی نہیں ہے۔
जोहा तुम घर जाओ, अभी मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। जोहा को नाराज होता देखकर वो उसके दिफा में बोला, मगर इस बार भी उसे जोहा के दिफा में बोलना महंगा पड़ गया। जहांगीर साहब ने एक और थप्पड़ उसके बाएं गाल पर रसीद किया। मैं जा रही हूं दिलावर, तुम कितने बुज़दिल इंसान हो, आज अंदाजा हो गया है मुझे। तुम्हारे डैड ने मेरी इतनी तौहीन की, लेकिन तुम उल्टा मुझे यहां से भेज रहे हो। अब मुझसे कोई ताल्लुक मत रखना। वो गुस्से में उसे कहती वहां से चली गई। दिलावर ने अपना सर थाम लिया। वो जोहा से अपना ताल्लुक खराब नहीं करना चाहता था, मगर डैड की वजह से सब खराब हो गया था। वो गुस्से भरी नजरों से उन्हें देखने लगा। वो उसे अपने साथ घर ले जाना चाह रहे थे, मगर वो डट गया। डैड, मैं तब तक घर नहीं जाऊंगा जब तक आप मुझसे माफी नहीं मांगेंगे। आपने मुझ पर बिला वजह हाथ उठाया और जोहा के साथ भी अच्छा नहीं किया आपने। वो एक एक लफ्ज पर जोर दे रहा था। होश में तो हो तुम मेरे बाप हो या मैं तुम्हारा बाप हूं? उन्होंने चीखते हुए पूछा, वरना उनका जी चाह रहा था एक बार फिर उस पर हाथ उठाएं, ताकि इस बार उसको अकल आ ही जाए। मगर दिलावर को कोई असर नहीं हुआ। वो उन्हें वॉर्न करता हुआ वहां से चला गया कि जब तक आप मुझसे माफी नहीं मांगेंगे मैं घर नहीं आऊंगा। जहांगीर साहब ने उसे रोकने की कोशिश की, मगर वो अपनी गाड़ी भगाता वहां से चला गया। वो भी उसके पीछे जाने का इरादा करने लगे, मगर अचानक उनका सर भारी होने लगा। दर्द की टीसें उठने लगीं और जिस्म गर्म होने लगा। उनकी तबीयत खराब होने लगी थी। दिल की धड़कनें तेज हो गई थीं। सांस फूल रहा था। दिलावर के पीछे जाने का इरादा तर्क करके वो वापस घर जाने लगे। जब जहांगीर साहब घर पहुंचे तो उनकी हालत पहले से ज्यादा खराब हो चुकी थी। उनका ब्लड प्रेशर काफी शूट कर गया था। मलिहा परेशानी से डॉक्टर को कॉल मिला रही थी। डॉक्टर के आने के बाद उनका चेकअप किया और दवा दी, जिससे ब्लड प्रेशर थोड़ा कम हो गया, लेकिन अभी वो मुकम्मल बेहतर महसूस नहीं कर रहे थे। दिलावर की उन्होंने बहुत टेंशन ली थी। उन्होंने दिलावर की हरकत के बारे में मलिहा और अपनी बीवी को भी बता दिया था। मलिहा अपना सर पकड़कर बैठ गई। वो सोच भी नहीं सकती थी कि उसका बड़ा भाई इतनी बड़ी बेवकूफ़ी करेगा। उसकी वजह से पहले ही इन लोगों की बहुत बदनामी हुई थी। क्या करूं मैं मलिहा, तुम ही बताओ। तुमसे बड़ा है वो, लेकिन मैं अब तक उसकी शादी नहीं कर पा रहा। ये सोचकर डरता हूं वो किसी लड़की की जिंदगी ना बर्बाद कर दे। उसे अब भी शर्म नहीं आई कि किस तरह वो लड़कियों के साथ हराम ताल्लुकात बना रहा है। उसे बिल्कुल शर्म नहीं। मैं तो शायद उसी की परेशानी लिए इस दुनिया से रुखसत हो जाऊंगा। वो दुखी लहजे में बोल रहे थे। मलिहा को बहुत दुख हो रहा था और दिलावर पर शदीद गुस्सा आ रहा था, जिसे अपने बाप की कभी फिक्र ही नहीं रही थी। डैड, आप फिक्र मत करें, बस आप दिलावर भाई की शादी की तैयारियां करें। एक मर्तबा उनकी शादी एक अच्छी लड़की से हो गई तो वो खुद उनको ठीक कर देगी। मैंने सोच लिया है, उन्हें मेरी नंद हानिया ही ठीक करेगी और एक ऐसा अच्छा इंसान बनाएगी। वो पूरे यकीन के साथ बोली तो जहांगीर साहब उसकी बात पर गौर करने लगे। मलिहा की शादी को 3 साल हो चुके थे। उसने अपनी पसंद से आसिफ से शादी की थी। हानिया उसकी छोटी नंद थी, जो हमेशा से बहुत भोली भाली, मासूम और नेक शरीफ लड़की रही थी। जहांगीर साहब को भी वो बहुत पसंद आई थी। अब जब मलिहा ने उसका दिलावर की निस्बत से जिक्र किया तो वो सोच में पड़ गए कि क्या वाकई हानिया की शादी अगर दिलावर से हो गई तो वो उनके बेटे को ठीक कर सकेगी, एक नेक और परवाह करने वाला इंसान बना पाएगी। मगर डैड, एक प्रॉब्लम है हानिया की तरफ से, जो मैं सिर्फ आपको बताना चाहती हूँ, उसने राजदारी से कहा और हानिया की माजी के बारे में बताया, जिसे सुनकर जहांगीर साहब को दुख भी हुआ। कोई बात नहीं मलिहा, दिलावर कोई दूध का धुला इंसान नहीं है। उसने बहुत सी लड़कियों के साथ ताल्लुकात रखे हैं। तुमने जो कुछ बताया उसमें हानिया का कोई कसूर नहीं। मुझे ये रिश्ता कबूल होगा। तुम अपनी सास से बात करो, फिर बाकायदा रिश्ता लेकर जाएंगे। जहांगीर साहब की बात सुनकर मलिहा बहुत खुश हो गई। वो सब वाकई चाहते थे कि दिलावर सब हराम काम छोड़ दे
اور اپنی زندگی کو بہتر طریقے سے جیے، اپنی ذمہ داری کو سمجھے۔ لیکن وہ صرف اپنے باپ کی دولت پر عیاشی کرتا تھا۔ کمانے اور شادی کرنے کی اسے کوئی فکر نہیں تھی۔ لڑکیوں سے دوستی کرنا اس کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ جہانگیر صاحب چاہتے تھے وہ ان کا آفس جوائن کرے، اپنی ذمہ داری نبھائے، شادی کرے اور عزت سے اپنی زندگی گزارے، مگر 28 سال کا ہونے کے باوجود وہ شادی اور کمانے کے لیے سنجیدہ نہیں تھا۔ اسے 2 سال چھوٹی ملیحہ کی شادی کو بھی 4 سال گزر گئے تھے اور اس کی ایک بیٹی تھی۔ جہانگیر صاحب فیصلہ کر چکے تھے کہ اس بار دلاور کی شادی کر کے رہیں گے، چاہے اس کے لیے انہیں کچھ بھی کرنا پڑے۔ وہ اب آرام کرنا چاہتے تھے، اس لیے ملیحہ نے لائٹس آف کر دی۔ دلاور اپنے کیے پر بالکل شرمندہ نہیں تھا۔ اس وقت وہ اپنے دوست کے فلیٹ میں موجود تھا اور سگریٹ پی رہا تھا۔ یار شکیل، ڈیڈ نے بالکل اچھا نہیں کیا۔ زوہا میرا فون بھی نہیں اٹھا رہی، اب میں کیا کروں؟ وہ اپنے دوست سے اپنی پریشانی شیئر کر رہا تھا۔ اس کا دوست اس کی جرت کو سراہ رہا تھا اور اسے مشورہ دے رہا تھا کہ تمہیں زویا کو منانے کے لیے اس کے لیے کوئی سرپرائز پلان کرنا چاہیے، ہو سکتا ہے وہ مان جائے۔ دلاور کو یہ آئیڈیا بہت پسند آیا۔ فی الحال دلاور کا اپنے دوست کے گھر رہنے کا ارادہ تھا، تب تک جب تک اس کے ڈیڈ اپنی غلطی تسلیم نہیں کر لیتے۔ اگلے دن بھی وہ زوہا سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتا رہا، پر شام میں اسے زوہا کا واٹس ایپ پر میسج موصول ہوا۔ دلاور، میں تم سے اپنا حق تعلق توڑ رہی ہوں۔ میرا کزن عزت سے میرا رشتہ لے کر آ رہا ہے اور اب میں شادی کر رہی ہوں۔ آدھی رات کو اس کا میسج پڑھ کر وہ سخت صدمے میں چلا گیا۔ وہ لان میں چہل قدمی کر رہی تھی، اس کی آنکھوں میں ویرانی تھی، وہ کسی عمیق سوچ میں گم تھی۔ موسم بہت خوبصورت تھا لیکن اب کوئی چیز اسے اپنی طرف مائل نہیں کر پا رہی تھی۔ اس کا دل بہت دکھی تھا۔ آج کافی عرصے بعد وہ لان میں آئی تھی۔ اچانک اس کی نگاہ لان کے آخری کونے میں ایک درخت کے قریب رکھی کرسی اور میز پر گئی، جسے دیکھ کر اس کی آنکھوں کے کونے بھیگ گئے۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں بیٹھ کر وہ پڑھائی کیا کرتی تھی۔ اسے پڑھنے لکھنے کا بہت شوق ہوا کرتا تھا اور وہ ہمیشہ دل لگا کر پڑھتی تھی۔ نہ صرف اسکول میں بلکہ اس نے کالج میں بھی ٹاپ کیا تھا، مگر پھر اس کی زندگی میں وہ حادثہ ہو گیا جس نے اس کی زندگی بدل کر رکھ دی اور اسے اس کا سب کچھ چھین لیا۔ وہ کرسی پر گرنے کے سے انداز میں بیٹھ گئی۔ میز پر اس نے بازو رکھے اور ہیڈ ڈاؤن کرتے آنسو بہانے لگی۔ سب کچھ کتنا بدل گیا تھا۔ 3 سال ہو چکے تھے سانحہ کو، لیکن اب تک وہ اس فیز سے نکل نہیں پائی تھی۔ اچانک اسے دور سے کہیں کسی کتے کے بھونکنے کی آواز آئی تو وہ رونا بھول کر اٹھ بیٹھی۔ اسے کتوں سے بہت ڈر لگنے لگا تھا۔ جب بھی کوئی کتا بھونکتا تھا تو اسے اپنا بھیانک ماضی یاد آ جاتا تھا۔ وہ بھیانک لمحات یاد آ جاتے تھے۔ اب بھی وہ کانپنے لگی تھی اور ڈر کے مارے وہاں سے اٹھ کر بھاگ گئی۔ کمرے میں آ کر اس نے کنڈی لگائی اور گہری سانسیں لینے لگی۔ اس کا جسم پسینے سے شرابور ہو چکا تھا۔ اس نے کپ کپاتے ہاتھوں سے جگ سے گلاس میں پانی بھرا اور پینے لگی۔ اب جا کر اس کی حالت بہتر ہوئی تھی۔ وہ آنکھیں موندے بستر پر لیٹ گئی۔ آج اسے ڈیڈ کا نہ صرف خود فون آیا تھا بلکہ وہ اس سے اپنی غلطی کی معافی مانگتے ہوئے اسے گھر بلا رہے تھے۔ دلاور دنگ رہ گیا۔ اس کا باپ ہمیشہ سے ضد اور انا میں اس سے آگے رہا تھا اور آج وہی اسے معافی مانگ کر اسے گھر بلا رہے تھے، یہ جاننے کے باوجود کہ وہ اس کے آگے جھک رہے تھے۔ دلاور کو بڑی حیرانی ہوئی۔ اس سب پر یقین کرنا اسے بڑا مشکل لگ رہا تھا، مگر اس نے ناراضگی ختم کی اور گھر واپس چلا گیا۔ آخر کب تک گھر سے دور رہ سکتا تھا؟ مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ جہانگیر صاحب یہ سب ایک منصوبے کے تحت کر رہے تھے۔ اس سب کے پیچھے ان کا یہی ایک مقصد تھا کہ وہ اپنی پسند سے اس کی شادی کر دیں۔ اسی لیے وہ اچانک سے اس کے ساتھ اپنا رویہ درست کر چکے تھے۔ ملیحہ نے اپنی ساس سے ہانیہ اور دلاور کے رشتے کی بات کی تھی۔ اس کے شوہر کو بھی کوئی اعتراض نہیں تھا اور نہ اس کی ساس کو۔ ملیحہ، تمہارا دل بہت بڑا ہے،
हानिया का माजी जानने के बावजूद तुमने उसके लिए बहनों की तरह सोचा है। अली उसका शुक्रिया अदा कर रहा था। वो मलिहा पर फख्र कर रहा था, मगर वो नहीं जानता था मलिहा ने सिर्फ हानिया का नहीं बल्कि दिलावर का भी भला सोचा था। कौन जानता था कि आगे जाकर उसका ये फैसला ठीक होने वाला था या गलत। जोहा से ब्रेकअप के बाद दिलावर ने अपनी पुरानी दोस्त ऐना से बातचीत शुरू कर दी और वो उसे 2 दिन में ही इस बात पर फोर्स करने लगी थी कि वो उससे शादी कर ले। पहले भी ऐना और वो रिलेशनशिप में थे। ऐना से 2 साल पहले उसका ब्रेकअप हुआ था, जिसके बाद वो जोहा से दोस्ती कर चुका था और अब जोहा के सब खत्म करने के बाद उसने ऐना से दोबारा पैचअप कर लिया। दिलावर, तैयार हो जाओ, आज हम तुम्हारा रिश्ता लेकर जा रहे हैं और शादी की तारीख लेकर आएंगे। जहांगीर साहब ने गोया उसकी समातों में बम फोड़ा। वो दंग रह गया। डैड, क्या मतलब है आपकी इस बात का? वो गुस्से से पूछने लगा, हालांकि वो अच्छी तरह उनकी बात समझ गया था। दिलावर भाई, हमने फैसला किया है मेरी नंद हानिया से आपकी शादी करने का। मलिहा ने वजाहत की तो वो बेयकीनी से उन्हें देखने लगा। डैड, आप जानते हैं मैंने आपको पहले ही बता दिया है, मैं जब भी जिंदगी में शादी करूंगा अपनी पसंद से करूंगा। आप लोग मुझे फोर्स नहीं कर सकते। और मलिहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सोचने की कि मैं तुम्हारी उस पेंडू और पागल नंद से शादी करूंगा? वो गुस्से से मलिहा से पूछने लगा। चूंकि हानिया बहुत शरीफ लड़की थी, किसी से बात नहीं करती थी, हर वक्त सर पर दुपट्टा लेकर रखती थी, इसलिए वो हानिया को तंजिया पेंडू के लक़ब से नवाज रहा था, जिसे सुनकर मलिहा के तन बदन में आग लग गई। तुम्हारी शादी हानिया से ही होगी दिलावर, ये मेरा आखिरी फैसला है। जहांगीर साहब ने अपनी बात पर जोर दिया। इस दुनिया की कोई ताकत मेरी शादी हानिया से नहीं करवा सकती डैड, वो बुलंद आवाज में बोला। अचानक उसकी बात सुनकर जहांगीर साहब ने तड़पते हुए अपने दिल पर हाथ रख लिया और जमीन पर बैठते चले गए। सबकी रूह फना हो गई। डैड, मलिहा उनकी तरफ भागी थी। मैं मर जाऊं तो मेरी कब्र पर भी मत आना दिलावर, आज तुम्हारी वजह से हार्ट अटैक से मर जाऊंगा मैं। वो तकलीफ की शिद्दत से तड़पते हुए दिल पर हाथ रखकर बोल रहे थे। साजिदा बेगम और मलिहा रोते हुए उनके पास बैठ गईं। दिलावर के हाथ पांव फूल गए। वो वाकई डर गया था। आज अपने बाप को इस हालत में देखकर उसे जितना खौफ आया था पहले कभी नहीं आया था। वो अपने बाप से लाख इख्तलाफ रखता था, मगर वो उनसे प्यार भी बहुत करता था। आखिर उन्हें तकलीफ में कैसे देख सकता था? कहीं उन्हें कुछ हो ना जाए, इसीलिए उसने डर कर हामी भर ली कि वो हानिया से शादी करेगा। उसने जो ही हथियार डाले, दिल ही दिल में जहांगीर साहब ने अपनी अदाकारी को दाद दी। ये सब ड्रामा उन्होंने सिर्फ इसीलिए किया था ताकि दिलावर उनकी बात मान जाए। अभी फिलहाल उन्होंने इस बारे में मलिहा या साजिदा बेगम को भी नहीं बताया था कि उनके दिल को कोई तकलीफ नहीं हुई थी, बल्कि वो सिर्फ दिलावर के मुंह से इकरार सुनने के लिए ये सब कर रहे थे। हानिया को मलिहा ने खुद अपने हाथों से आज तैयार किया था और जब उसे पता चला उसका रिश्ता मलिहा के घर वाले दिलावर के लिए देखने आ रहे हैं तो वो शर्मसार रह गई। भाभी, आपके भाई से मेरा रिश्ता, क्या वो जानते हैं मेरी सच्चाई? हानिया ने परेशानी से पूछा तो मलिहा ने नफी में सर हिला दिया और उसे समझाया कि वो भी दिलावर को खुद से कुछ भी बताने की गलती ना करे। ये सुनकर वो हैरान रह गई। उसने बेयकीनी से मलिहा को देखा। भाभी, इतना बड़ा सच बताए बगैर मैं ये रिश्ता कैसे बना सकती हूँ? ये गलत होगा। बेशक आपने मेरा भला सोचा है, मगर मैं किसी के साथ भी ऐसे शादी नहीं कर सकती, चाहे वो आपके भाई हों। मैं चाहती हूँ मुझसे जो भी शादी करे वो मुझे मेरी हकीकत जानकर तस्लीम करे, ना कि बाद में हकीकत सामने आए तो वो मुझे छोड़ दे। ना चाहते हुए भी हानिया की आंखें भीग गईं और वो सिसक सिसक कर रोना शुरू हो गई। मलिहा ने उसे गले से लगाया। अम्मी के समझाने पर फिलहाल हानिया खामोश हो गई थी, इसलिए आंसू साफ करती वो उनके हमरा लाउंज में आ गई। दिलावर ने एक हकारत भरी निगाह हानिया पर डाली थी।
इस वक्त भी उसने अच्छी तरह सर पर दुपट्टा लिया हुआ था और ढीला ढाला लिबास पहना था और अच्छी तरह खुद को कवर किया हुआ था। पेंडू लड़की, चेहरा भी दिखाने की क्या जरूरत है, नकाब ही कर लेती। वो उसे देखकर तनफ्फुस से सोचने लगा। बातचीत आगे बढ़ी थी। मलिहा के माँ बाप को हानिया पहले भी बहुत पसंद थी, क्योंकि वो सुलझी हुई मासूम और नेक लड़की थी। वो चाहते थे उनका लाउबाली, लापरवाह और गैर जिम्मेदार बेटा बदल जाए। इसलिए जरूरी था कि उसके लिए एक बेहतरीन शरीके हयात का इंतखाब किया जाता। सो इसलिए उन्होंने हानिया को पसंद कर लिया था। दीगर मामलात आगे बढ़े और 3 महीने बाद उनकी शादी तय कर दी गई। हानिया को रोने का जी चाह रहा था। उसका ज़मीर बार बार उसे यही बात कह रहा था कि उसे दिलावर को अपने बारे में सच बता देना चाहिए। अगर सच जानने के बावजूद वो उससे शादी करना चाहेगा तो ठीक, वरना वो ये रिश्ता ख़त्म कर देगी। मसला ये था कि उसके पास दिलावर का फ़ोन नंबर नहीं था। वो उससे मिल तो नहीं सकती थी, अलबत्ता कॉल या मैसेज पर उससे बात ज़रूर कर सकती थी। उसने सोचा वो मलिहा भाभी के फ़ोन से दिलावर का नंबर ले लेगी। इसलिए उसने चुपके से मलिहा के फ़ोन से दिलावर का नंबर लिया और उसे अपने फ़ोन में सेव कर लिया। उसने रात को डिनर करके अपने कमरे में जाने के बाद दिलावर को व्हाट्सएप पर मैसेज लिखा था। दिलावर, मैं हानिया हूं, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। क्या आप बता सकते हैं कॉल पर करूं या मैसेज पर? उसने तेजी से टाइप किया। दूसरी तरफ दिलावर, जो कि इस वक्त ऐना से बात कर रहा था, जो ही उसे हानिया का मैसेज मिला वो सख्त बदमजा हुआ और उसने ये मैसेज मलिहा को फॉरवर्ड कर दिया। साथ ही साथ उसने तंजिया लिखा, देख लो अपनी नंद को जिसे तुम बहुत शरीफ कहती हो, उसने रिश्ता तय होने के अगले ही दिन मैसेज खड़का दिया मुझसे लिखवा लो, तुम्हारी ये नंद सिर्फ शक्ल से ही शरीफ है, बाकी ये पेंडू ही है। जो ही उसने मलिहा को मैसेज लिखा और मलिहा ने ये पढ़ा तो उसके हाथ पैर फूल गए, क्योंकि वो तो जानती थी कि यकीनन हानिया दिलावर को सच बताने लगी होगी। वो तकरीबन भागते हुए हानिया के पास गई थी और उसे काफी डांटा भी था। हानिया, अगर तुमने दिलावर को कुछ भी बताया तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। मलिहा की बात सुनकर वो शॉक्ड रह गई। उसने उसे उसके माँ बाप की कसम दे दी थी कि वो दिलावर से कुछ नहीं कहेगी। ना चाहते हुए भी उसने मलिहा की बात मान ली थी। उसके जाते ही वो एक बार फिर तकलीफ की शिद्दत से रोने लगी। वो वक्त भी आ चुका था जिससे हानिया डर रही थी। आज उसका निकाह था। उसका दिल उसे बार बार मलामत कर रहा था कि उसे ये निकाह नहीं करना चाहिए, मगर वो घर वालों के हाथों मजबूर हो गई थी। वो आज दुल्हन बनकर बहुत खूबसूरत लग रही थी। आईने में खुद को देखते उसने तकलीफ से सोचा था कि काश उसका नसीब भी इतना ही खूबसूरत होता। बेआवाज रोते हुए उसने निकाह कबूल किया। दिलावर के तासुरात काफी करख्त थे। उसे इस निकाह की कोई खुशी नहीं थी, बल्कि वो ये शादी सिर्फ अपने बाप की वजह से कर रहा था। थोड़ी देर में रुखसती का शोर उठा। मलिहा ने उसे समझाया था कि उसे दिलावर के साथ एक नई जिंदगी का आगाज करना है, ना कि ऐसी वजह पैदा करनी है कि ये रिश्ता ही टूट जाए। हानिया फकत असबात में सर हिला गई। उसे मलिहा खुद दिलावर के कमरे में छोड़ कर गई थी। दिलावर भाई, अब आपकी शादी हो चुकी है, इसलिए बदल जाएं। हानिया बहुत भोली भाली है, इसीलिए उसका बहुत ख्याल रखिएगा और दिल मत तोड़िएगा उसका। मलिहा दिलावर को समझा रही थी, मगर दिलावर को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने एक नज़र हानिया पर डालना भी गवारा ना की थी। उसे हानिया में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसे आजकल सिर्फ ऐना अच्छी लग रही थी। हानिया अब भी उसके लिए एक पेंडू लड़की थी। वो मलिहा का लेक्चर सुनने के बाद छुपकर स्टडी रूम में आ गया। उसने शेरवानी बदल ली थी। वो अपने कमरे में नहीं गया था। उसका यही स्टडी रूम में रहकर ऐना से बात करने का इरादा था, क्योंकि जब से ऐना को पता चला था उसने शादी कर ली है, तब से वो उससे बहुत खफा थी और वो उसे तसल्लियां दे रहा था कि ये शादी सिर्फ उसने ज़बरदस्ती की है और वो बहुत जल्द
हानिया को छोड़ देगा। हानिया दिलावर के लिए फूलों की सेज सजाए उसके बेड पर बैठी उसका इंतजार कर रही थी। एक अजीब सा खौफ था जिसने उसके पूरे वजूद को अपनी लपेट में ले रखा था। उसके दिल की धड़कनें बेतरतीब थीं। दिलावर का इंतजार करते हुए काफी देर हो गई थी। हानिया को इस कमरे में अब दहशत सी हो रही थी। हाँ, ये कमरा उसके लिए अनजान ही तो था। जहां वो उसका इंतजार करती जाग रही थी, वहीं दिलावर स्टडी रूम में सोफे पर लेटा अब गहरी नींद सो चुका था। हानिया को तशवीश होने लगी कि आखिर वो कब तक यहां तन्हा बैठी रहेगी। उसने सर तकिए पर रख लिया और आंखें मूंद ली, मगर माजी की दर्दनाक यादें उसका पीछा छोड़ने को तैयार नहीं थी। ये माजी ही था जिसने उसकी शख्सियत को इतना डरपोक बना दिया था। उसने एक अमीर घराने में आंख खोली थी। बाबा बिजनेसमैन थे। उनका अच्छा कारोबार था। जहां इंसान तरक्की करता है वहां हासिद लोग भी पैदा हो जाते हैं जो फिर उसके दुश्मन बन जाते हैं। हानिया के बाबा के साथ भी ऐसा ही था। उन्हें काफी मेहनत के बाद एक टेंडर मिला था। इसी वजह से उन्हें मजीद कामयाबी मिल गई। उनके पुराने हरीफ सुहेल साहब हसद के मारे इंतकाम की आग में भड़क रहे थे, क्योंकि वो ये टेंडर हासिल करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने आजर साहब को काबू में करने का मंसूबा बनाया, जो किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था। एक दिन हानिया कॉलेज से घर वापस आ रही थी जब अचानक एक गाड़ी उसके करीब आकर रुकी और उसमें से 2 आदमी निकले। उन्होंने उसके मुंह पर क्लोरोफार्म वाला रुमाल रख दिया। वो तड़पते हुए बेहोश हो गई थी। आंखें बंद थीं। उसके हवास बिल्कुल काम नहीं कर रहे थे। वो आदमी उसे सुहेल साहब के पास ले गए जहां उन्होंने उसे कैद रखा और उसने बाबा को धमकी दी कि अगर उन्होंने ये टेंडर नहीं छोड़ा तो वो हानिया को नहीं छोड़ेंगे, उसे मार डालेंगे। आजर साहब दंग रह गए। अपनी बेटी को बचाने की खातिर उन्होंने पुलिस का सहारा लिया। वो टेंडर से पीछे नहीं हटे थे, जिसके बाद गुस्से में सुहेल साहब ने हानिया को अपने बेटे के हवाले कर दिया, जिसने उसकी इज्जत पामाल की और उसे सड़क पर फेंक दिया। सब कुछ लम्हों में बदल गया था। आजर साहब और पुलिस वाले हानिया तक पहुंच गए थे, मगर काफी देर हो गई थी। पुलिस वालों ने सुहेल साहब और उनके बेटे को गिरफ्तार कर लिया था, मगर कुछ ही दिन बाद वो जेल से रिहा हो गए, क्योंकि उनके पास काफी पैसा था। तगड़े वकील थे जिन्होंने उनकी जमानत करवा दी थी। वो तो अपनी जिंदगी में खुश होकर आगे बढ़ गए थे, जबकि हानिया की जिंदगी बर्बाद हो गई थी। इस बारे में खानदान वालों को कुछ मालूम नहीं था। यह सब खुफिया रखा गया था। मलीहा, बेटी, तुम भी अपने घर में ये सब किसी को मत बताना, वरना बहुत बदनामी हो जाएगी, हम लोगों की भी और हानिया की भी। लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे। आजर साहब ने मलीहा से इल्तिजा की थी और मलीहा ने उनसे वादा कर लिया था कि वो हानिया का ये राज हमेशा दफन कर देगी। कुछ भी अब पहले जैसा नहीं रहा था। हानिया दिमागी तौर पर काफी अरसा बीमार रही थी। हर वक्त रोती रहती थी। उसने कॉलेज जाना छोड़ दिया था। वो डर जाती थी। उसे कुत्तों से बहुत डर लगता था, क्योंकि सुहेल साहब के उस दरिंदे बेटे ने उसे अपने पालतू कुत्ते से बहुत खौफजदा करवाया था। हानिया की जिंदगी बस उसके कमरे तक महदूद हो गई थी। वो कभी शादी नहीं करना चाहती थी, मगर फिर अचानक मलीहा भाभी ने उसकी शादी के हवाले से दिलावर को सोच लिया। वो चाहती थी दिलावर को अपना माजी बता दे, क्योंकि अगर बाद में उसे मालूम हुआ तो शायद उसका रद्दी अमल कुछ अच्छा नहीं होगा। माजी की भयानक यादों को सोचते हुए कब उसने नींद की वादी में कदम रखा, उसे मालूम ना हुआ। जब सुबह किसी काम से दिलावर कमरे में आया तो हानिया को देखकर उसे सख्त कोफ्त हुई। अपना सामान लिए वो घर से चला गया था। इसी तरह वलीमा भी गुजर गया, मगर दिलावर ने हानिया से कोई बात करना भी गवारा ना की। हानिया दिल ही दिल में डर रही थी कि कहीं वो उसकी सच्चाई तो नहीं जान गया। जब दिलावर कमरे में आया तो उसने खुद से उसे मुखातिब किया। दिलावर, आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे? क्या कोई मसला है? उसने हिम्मत करते हुए पूछा, तो उल्टा वो उसे खूनख्वार निगाहों से देखने लगा।
सुनो लड़की, मेरी जिंदगी में दखल अंदाजी मत देना, और ना ही तुम्हारे पास कोई हक है मुझसे सवाल करने का। अगर सच जाना है तो सुनो, मुझे तुमसे क्या मसला है? मैं किसी और को पसंद करता हूं। तुम्हारे साथ जबरदस्ती मेरी शादी हुई है, इसलिए मैं तुम्हें कोई दिलचस्पी नहीं ले रहा। दिलावर ने वाज़ेह अल्फाज में उसे समझा दिया था, क्योंकि वो कल रात ही डैड की गुफ्तगू सुन चुका था, जो चुपके से मलिहा को अपने ड्रामे का बता रहे थे, जो उन्होंने दिलावर के मुंह से इकरार निकलवाने के लिए किया था। यह सुनने के बाद दिलावर ने भी दिल में पक्का इरादा कर लिया कि वो ऐसी सूरत हाल पैदा करेगा कि उसकी जबरदस्ती की ये बीवी खुद ही उसकी जिंदगी से चली जाएगी। हानिया ने जब दिलावर के मुंह से ये बातें सुनी तो उसके नाजुक दिल पर बहुत जोर से चोट लगी। वो आंसू बहाने लगी थी। दिलावर उसे हकारत से देखने लगा और रोता हुआ छोड़कर वहां से चला गया। हानिया ने इस बारे में मलिहा को सब बता दिया था। मलिहा अपना सर पकड़ कर रह गई और उसे समझाया था कि तुम ही मेरे भाई को ठीक कर सकती हो। बाकी लड़कियां सिर्फ उसे पसंद आती हैं, उससे मोहब्बत किसी से नहीं। तुम वो लड़की बन सकती हो जिससे वो मोहब्बत करे। मलिहा की बात सुनकर वो परेशानी से उसे देखने लगी। उसे बहुत दुख हुआ था कि जब उसकी भाभी सब कुछ जानती थी तो उसके बावजूद उन्होंने उसकी शादी दिलावर से क्यों करवाई थी। उसे ये बात बहुत बुरी लगी थी, मगर वो खामोश हो गई। घर में सब दिलावर को हनीमून ट्रिप पर भेज रहे थे। दिलावर हानिया के साथ कहीं जाना नहीं चाहता था, मगर फिर उसके दिमाग में एक जबरदस्त आइडिया आया। उसने घर में सबके सामने यही नाटक किया कि वो कुछ दिन के लिए हानिया को लेकर हनीमून पर मरी, नारान, कागान और इस्लामाबाद जा रहा है, मगर वो वहां जाने के बजाय उसे हवेली ले आया। अब हवेली के बाहर कोई चौकीदार मौजूद नहीं था जो उसकी खबर उसके बाप को लगाता। चाबी से दरवाज़ा खोलकर वो हवेली दाखिल हुआ और फिर अपने कमरे का दरवाज़ा भी उसने चाबी से खोला था। हानिया को वहीं हवेली में छोड़कर वो अपने दोस्तों के साथ घूमने फिरने चला गया, जबकि हानिया खौफ से डरने लगी। इस बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। अगर तुमने कुछ बताया कि हम हनीमून पर नहीं गए तो अच्छा नहीं होगा। हवेली से निकलने से पहले वो उसे वार्न करके गया था। इतने बड़े घर में हानिया अकेली थी, उसे बहुत खौफ आ रहा था। अचानक दूर से कहीं से उसे कुत्तों के भौंकने की आवाजें आने लगीं तो वो बहुत डर गई। दिलावर के कमरे में वो बेड पर सिमट कर बैठी थी। कमरे में हीटर ऑन होने के बावजूद उसे डर के मारे सर्दी लग रही थी। काफी देर तक वो डर से रोती रही। फिर जब दिलावर हवेली आया तो उसे सुकून मिला। जो ही वो कमरे में आया, हानिया भागती हुई उस तक आई और उसके गले से जा लगी। दिलावर, आप क्यों चले गए थे? मुझे बहुत डर लग रहा था, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाइएगा, वो रोते हुए बोल रही थी। दिलावर ने गुस्से से उसे खुद से दूर किया। मेरे कमरे से जाओ, मुझे सोना है, किसी और कमरे में चली जाओ, वो उसका सामान अपने कमरे में देखकर बोला। हानिया एक बार फिर रोने लगी। मैं कहाँ जाऊं दिलावर, मेरी शादी हुई है आपसे, तो अब मुझे आपके साथ ही रहना है। वो उसे समझाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि मलिहा ने उसे कहा था कि वो दिलावर को अपने और उसके रिश्ते का एहसास दिलाए, उसे समझाए। इसीलिए हानिया बमुश्किल हिम्मत जुटाए बोल रही थी। उसकी बात सुनकर दिलावर के माथे पर बल पड़ गए। ये जबरदस्ती की शादी है, मैं तुम जैसी 2 टके की और पेंडू लड़की को अपनी बीवी तस्लीम नहीं करता, निकलो मेरे कमरे से। उसने उसकी आंसुओं से तंग आकर हानिया को धक्का देकर कमरे से निकाल दिया और कमरे को अंदर से लॉक कर दिया। उसे निकालकर दिलावर खुद सिगरेट पीने लगा, इस बात से अनजान कि हवेली के बाकी दरवाजे लॉक थे, क्योंकि उसके डैड ने ही चौकीदार से ऐसा करने को बोला था ताकि दिलावर यहां आकर फिर से कोई हराम सरगर्मी ना कर सके। मगर खुशकिस्मती से दिलावर के पास उस कमरे और हवेली की डुप्लीकेट चाबी रह गई थी। हानिया ने दूसरे कमरे को खोलने की कोशिश की, मगर सब लॉक थे। उसे खौफ आ रहा था और मजीद सर्दी लग रही थी।
उसे शिद्दत से रोना आ रहा था। उसका अपना फोन भी घर पर रह गया था। वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजर रहा था। हानिया ठंड से लाउंज में सोफे पर बैठती सुकड़ने लगी, पर जूं जूं सर्दी बढ़ने लगी, हानिया के हवास खोने लगे और जिस्म ठंडा पड़ गया। अचानक बादलों के गरजने की आवाज आई, जिससे मालूम हुआ कि मौसम काफी खराब है। कमरे में पानी भी मौजूद नहीं था। उसे प्यास लगने लगी। किचन में जाने के लिए जब दिलावर हीटर ज़दा कमरे से बाहर निकला तो हानिया को ठंड में बेहोश देखकर दंग रह गया। वो सोफे पर लेटी हुई थी, मगर उसका सर नीचे ढलक रहा था। उसने उसे झंझोड़ा, मगर वो होश में नहीं आई। तो परेशान होकर वो उसे अपने कमरे में ले गया। अब तूफानी बारिश शुरू हो चुकी थी। उसने हानिया की हालत से डर कर डॉक्टर को कॉल मिलाई, मगर उसकी कॉल नहीं जा रही थी। मौसम खराब होने की वजह से सिग्नल्स भी नहीं आ रहे थे। वो काफी कोशिश करता रहा, मगर जब कुछ देर तक कोई डॉक्टर ना मिला तो खुद हानिया के करीब होते उसके ठंडे वजूद पर अपना स्वेटर उतार कर डाला और उस पर अच्छी तरह कंबल डाला। उसके बाद इलेक्ट्रिक हीटर उसके करीब रख दिया। वो सिर्फ इस बात से डर गया था कि अगर इससे कुछ हो गया तो उसका बाप उसे नहीं छोड़ेगा। कहीं ऐसा ना हो इसकी इस हालत का जिम्मेदार इसे ठहराया जाए। हानिया को आहिस्ता आहिस्ता होश आ रहा था, मगर उसका दिमाग इसी बात पर उलझा हुआ था कि उसे दिलावर को अपने बारे में सच बता देना चाहिए। मलिहा भाभी, दिलावर को सच बता दें, वो अचानक नींद में बोली। दिलावर जो कि सोफे पर बैठा फोन इस्तेमाल कर रहा था, हानिया की बात सुनकर हैरान रह गया। हानिया उठो, वो उसे पुकार रहा था। दिलावर को बता दे कि मेरे साथ क्या जुल्म हुआ, उस शख्स ने मेरे साथ क्या किया, उनको हकीकत बता दें, सच ना छुपाएं। मैं उनको खुद सच बता दूंगी, वो राज बता दूंगी। वो अब नींद में कोई ख्वाब देखते रो रही थी, मगर साथ ही साथ कुछ अजीब से लहजे में बोल रही थी। जब दिलावर ने यह सब सुना तो उसके होश उड़ गए। वो उसके करीब गया और उसे झंझोड़ कर उठाया तो वो डरते हुए उठकर बैठ गई। हानिया, तुम किस शख्स की बात कर रही हो? बोलो जल्दी, क्या सच छुपा रही हो तुम और मलिहा? वो करख्तगी से पूछने लगा तो हानिया रोने लगी और झूठ बोल दिया कि वो कोई भयानक ख्वाब देख रही थी। दिलावर खामोशी से अपनी जगह पर वापस आ गया और सोने की कोशिश करने लगा, जबकि हानिया की नींद उड़ चुकी थी। वो लोग घर वापस चले गए थे और इस बारे में किसी को कुछ मालूम नहीं था कि वो हनीमून पर गए ही नहीं थे। उनकी शादी को 3 महीने गुजर गए थे और हानिया माजी के सच का बोझ उठाए अब थक चुकी थी। उसे यही डर लगा रहता था कि अगर दिलावर को सच पता चल गया तो क्या होगा। वो इसी बारे में मलिहा से कॉल पर गुफ्तगू कर रही थी जब दिलावर ने सब सुन लिया। वो इसी मौके की तलाश में था कि उसे हानिया को छोड़ने का बहाना मिल जाए, और अब उसे बहाना मिल गया था। हानिया ने जब देखा दिलावर उसे ही देख रहा है तो उसने डर कर कॉल बंद कर दी। वो गुस्से में उसके नजदीक आया और उसके बाजू को अपनी गिरफ्त में ले लिया। बोलो हानिया, क्या बात कर रही थी तुम मलिहा से? कौन सी सच्चाई और हकीकत? बोलो, वो कौन सी हकीकत है जिसके सामने आने के बाद मैं तुमसे नफरत करूंगा या तुम्हें छोड़ दूंगा? उसने गुस्से से पूछा तो हानिया डर गई। उसने पहली बार दिलावर को इतने शदीद गुस्से में देखा था, इसीलिए एक एक करके उसे सच बता दिया कि उसे किस तरह से अगवा किया गया और फिर उसकी इज्जत को पामाल कर दिया गया। दिलावर दंग रह गया। उसके होश उड़ गए कि उसकी बहन मलिहा ये सब जानती थी, मगर उसके बाद भी उसने इसकी हानिया जैसी लड़की से शादी कर दी। वो गुस्से में उसे बेड पर धक्का देकर घर से चला गया। उसका खून खौल रहा था। वो हर हाल में मलिहा से जवाब चाहता था। उसने मलिहा को कॉल की। कैसी बहन हो तुम? खुद तो अपनी पसंद से शादी कर ली, मगर जब मैंने अपनी पसंद से शादी करना चाही तो तुम्हें तकलीफ हो गई। तुमने अपनी उस नंद की शादी मुझसे करवा दी जो कि पाकीज़ा लड़की है ही नहीं। वो गुस्से में पूछ रहा था।
मलिहा के होश उड़ गए कि दिलावर को शायद सच पता चल चुका था। दिलावर भाई, मैंने सिर्फ आपकी भलाई सोची थी, क्योंकि आपकी पसंद आवारा लड़कियां थी और हम लोग आपकी एक शरीफ और नेक लड़की से शादी करवाना चाहते थे। वो अपना लहजा धीमा रखते हुए बोली, क्योंकि दूसरे कमरे में ही उसकी सास और ससुर मौजूद थे। वो अब कहाँ रही है पाक साफ, बोलो। पागल हो तुम मलिहा, मैं उस जैसी इस्तेमाल शुदा लड़की को तलाक दूंगा। अब वो गुस्से में बोल रहा था और मलिहा से सख्त खफा था। भाई, आपको पता भी है आप क्या कह रहे हैं? हानिया तो मासूम है, उसे तो किसी दरिंदे ने अपनी इंतकाम की भेंट चढ़ाया। कभी आपने खुद को देखा है? आपने कितनी अयाश लड़कियों से हराम ताल्लुकात बनाए, अपनी मर्जी से, एक बार नहीं बल्कि कई बार। तो फिर आप क्या हुए? आप तो शराफत और पाकीज़गी के मयार से बहुत दूर हैं। वो भी अब बगैर किसी लिहाज के बोल रही थी। अपनी सच्चाई दिलावर से बर्दाश्त ना हुई और उसने चीखते हुए कॉल काट दी। अपना गुस्सा कम करने के लिए वो ऐना के घर चला गया था। इस वक्त ऐना घर पर तन्हा मौजूद थी। दिलावर अपना गम हल्का करने यहाँ आया था, मगर वो नहीं जानता था कि आज उसे अच्छा सबक मिलने वाला था। जो ही वो उसके घर गया तो अचानक से उसे अपने गले से लगा लिया। ऐना, तुम ठीक कहती थी, मुझे हानिया से शादी नहीं करनी चाहिए थी। अब मैं उसे तलाक दे दूंगा और तुमसे शादी करूंगा। दिलावर की बात सुनकर ऐना ने उसे पीछे धकेला। मैं तुम जैसे इंसान से शादी नहीं करूंगी। तुम्हारी असलियत मेरे सामने आ चुकी है कि तुम कितने घटिया इंसान हो। जोहा ने मुझे सब बता दिया है। दफा हो जाओ मेरे घर से। ऐना उसके चेहरे पर थप्पड़ मारते हुए बोली तो दिलावर का खून खौल उठा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? वो गुस्से में बोलता उसके चेहरे पर भी थप्पड़ मार चुका था। ऐना दंग रह गई। अब वो जुनून में उसके करीब आने की कोशिश कर रहा था। तुमने बहुत बेइज्जती की है ऐना, और मेरा वक्त जाया किया है। उसकी सजा तुम्हें मिलेगी। वो गुस्से में बोलता उसका दुपट्टा खींचते हुए उसके बाल पकड़ चुका था। इसी दौरान घर में ऐना के वालिद की एंट्री हुई। ऐना रोते हुए उनके गले लग गई। बाबा, ये देखें दिलावर क्या कर रहा है। ये जबरदस्ती मेरे साथ करने की कोशिश कर रहा था। प्लीज इसे पुलिस के हवाले करें। इसने बहुत सी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की है। ऐना की बात सुनकर वो दंग रह गया। ऐना के वालिद एक बड़े वकील थे। अपनी बेटी से उन्हें बहुत प्यार था। उन्होंने गुस्से में दिलावर को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। इस बार दिलावर पर बहुत बड़ा केस हुआ था और उसे 1 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। कोशिश के बावजूद भी अपनी दौलत और असरो रसूख का इस्तेमाल करते हुए उसके डैड उसे जेल से निकलवा नहीं सके थे। आज उसे इस सुनसान जेल में कैद हुए 1 महीना हो चुका था। उसे अब समझ आया था कि ऐना ने यह सब उससे बदला लेने के लिए किया था, क्योंकि एक बार वो भी ऐना को धोखा दे चुका था। एक नहीं बल्कि कई लड़कियों से उसने दोस्तियां की थी। कुछ लड़कियां उसके हवाले से सीरियस हो गई थीं, मगर वो किसी के साथ सीरियस नहीं था। और फिर उसकी जिंदगी में हानिया आ गई, एक नापसंद लड़की जो जाने क्यों उसे कभी पसंद नहीं आई, और ऊपर से उसकी ये सच्चाई कि उसके साथ माजी में क्या हो चुका था। हानिया तो मासूम है, उसे तो किसी दरिंदे ने अपने इंतकाम की भेंट चढ़ाया। कभी आपने खुद को देखा है? आपने कितनी अयाश लड़कियों से हराम ताल्लुकात बनाए। आप अपनी मर्जी से एक बार नहीं बल्कि कई बार। तो फिर आप क्या हुए? आप तो शराफत और पाकीज़गी के मयार से बहुत दूर हैं। मलिहा की बातें रोज उसे याद आती थी। अब उसे जेल में बगैर अच्छा पहने, अच्छा खाए पिए और अच्छे रहन सहन की अकल आना शुरू हो गई थी। अपनी गलतियों का एहसास हो रहा था। वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजर रहा था और अब उसके रिहा होने में 2 माह बाकी रह गए थे। वो बहुत बदल गया था। उसे उसके किए की जो सजा मिल रही थी, उसने उसके अंदर का सारा गुरूर और अकड़ सब कुछ निकाल दिया था। उसकी दाढ़ी बहुत बढ़ गई थी। उसके कपड़े बहुत पुराने हो चुके थे। वो सीमेंट के फर्श पर बैठा हुआ था
हर वक्त अपने बाप के पैसों पर अय्याशी करने वाले उस लड़के की आज हालत बहुत खराब थी। उसकी सारी अकड़ निकल चुकी थी। इतने अरसे बाद उसे इस बात का एहसास हो चुका था कि इतना अरसा उसने गफलत की जिंदगी गुजारी। उसे हानिया की याद आने लगी थी। वो उसके साथ 3 महीने रहा था और इस 3 माह में उसने हानिया का कभी ख्याल नहीं रखा था। उससे इज्जत के साथ बात नहीं की थी। वो लड़की हमेशा उसे हया का लबादा ओढ़े नजर आई, जबकि जिन लड़कियों से इसके ताल्लुकात थे उनमें हया नहीं थी। वो गौर करने लगा कि हानिया के साथ एक हादसा हुआ था, जबकि वो तो खुद लुत्फ अंदोजी के लिए लड़कियों के करीब जाता था। तो गुनहगार कौन हुआ? पाकीज़ा तो हानिया हुई और वो बदकिरदार साबित हुआ। वो अपना सर घुटनों में देकर रोने लगा। आज जब उसने खुद का मुहासबा किया तो उसे मालूम हुआ कि वो खुद गुनाहों के दलदल में फंसा हुआ था और हानिया वाकई मासूम थी, जिसने अपनी हमेशा हया को अव्वल रखा था। आज 1 साल बाद वो रिहा होकर घर आ गया। मैं ना कहता था दिलावर के सुधर जाओ, वरना मैं भी तुम्हें बचा नहीं सकूंगा। डैड की बात सुनकर वो इस बात में सर हिला गया और रोता हुआ उनके सीने से लग गया। सबसे मिलने के बाद वो अपने कमरे में आया, जहां उसने देखा हानिया नमाज पढ़कर फारिग हुई थी। वो आंखों में आंसू लिए उसके करीब आ गई। दिलावर ने उसे अपने हिसार में ले लिया। मुझे माफ कर दो हानिया, मैंने तुम्हारे साथ बहुत नाइंसाफी की है। वो रोते हुए उससे माफी मांग रहा था। हानिया को एहसास हो चुका था कि वो बदल चुका है। उसका लहजा और उसकी आंखें इस बात की गवाही दे रही थी कि ठोकर लगने के बाद उसकी आंखें खुल चुकी हैं। हानिया ने उसे माफ कर दिया और फिर वो दिलावर को निखरता हुआ देख रही थी। हानिया से उसने काफी कुछ सीखना शुरू कर दिया था। अब वो हानिया के जैसा बनना चाहता था, अपनी इज्जत की हिफाजत करने वाला, अपनी हया का ख्याल रखने वाला, निगाहें नीची रखने वाला और एक जिम्मेदार शख्स। उसके अंदर ये बदलाव देखकर डैड और मलीहा बहुत खुश थे। मैंने कहा था ना डैड, हानिया दिलावर को बदल देगी, उसने फख्र से कहा और उसकी बात सुनकर डैड मुस्कुराए थे। दिलावर को इस चीज का एहसास हो चुका था कि इंसान किसी हादसे में अपनी इज्जत गंवाने पर बुरा और बदकिरदार नहीं बनता, बल्कि तब बनता है जब वो जानबूझकर इरादे के साथ अपनी हया और इज्जत खराब करता है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें